Tashi, Chanoro, open name on, Pramado, subject make a Zalaman in a John of a tea, Netu on any of your subject mail, Chanoro Twitchy Arakamia. GC point in it, you know, Sunday I make a Zalamaro. GC point in a Varan Pibare. Captain in it, opening wood, President of short, Tola video, didn't know some Wemale. Open in it, Tola, Twitchy Arakamia. GC point thing are Pramadon to Lomane, the mat Yashi Waikmia. No more. Tailogia Nevido, no more Pietamala de Camia. No more go, Jalere Kama, Lima Tidigo, Pele Arecamia. No more Tama, Shalada, Lima, Totangama, Pele Arecamia. No more free hill, come on a pitching at General Bolon be white, come here. Kusoni, Bolon, Tolon be there, come, Chum, Peter, come here. Hold every. GC why they got Lalababa to my you are come here. Oh, Lala Baba will turn out to my you are come here. Bolon Lelon Pibida Kama, GC why they got Shima Yashi are come here. Oh, call like a lone general so come here. Bolon go and Joe come here. The over people that belong to long and Shiva, the come here. Shai Chalabi Lema Pele come here. Come on a yachane, Chishi Wine thing, a lema down Yashi water come here. We will. Chishi Wine thing, a Bolon Cholo be there, Kama, Santa Yashi come here. Bologna over Mia Pigo Nanya Soma Pimme, come here. Yes, what a point in Doshama, do a low song sound in a thing of Mia get it, come here. General, Pramad Loma, GC Wine thing, General
တမတ်ရရှိသွားတယ်ခင်ဗျာအိုးတအားကောင်းတယ်ခင်ဗျာပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ထိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမတ်ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလေလေးတိုင်မင်းကောင်းမလေးကောင်းနေလို့လောက်လာဒီလုံးကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့3လုံးမြောက်ပြီးသွားခင်ဗျာ3လုံးခါမှာငញ្ញဲဆိုးက2မှတ်ပေးထားရတယ်ခင်ဗျာဒီဘောလုံးကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပင်ကိုထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် white ball အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ GC1 အသင်းကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာဒီလုံးဆိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အလုံးလို့ဆိုရမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ GC1 အသင်းရဲ့ captain Varane ကရမ်းလိုက်တော့လေကီပါကကျွန်တော်တို့လေထဲမှာဖမ်းယူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တေးသွားတယ်ခင်ဗျာမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်သူတို့ပြောတယ်ဟာမြန်မာလိုပြောတာလေကျွန်တော်တို့ဒါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြတဲ့သဘောရခင်ဗျာကြိုက်လိုက်တယ်ထွန်းမြတ်ဟိန်းဖြစ်ပါတယ်ကီပါနိုင်ရတော့ထွန်းမြတ်ဟိန်းခင်ဗျဟုတ်တယ်ရေဆိုအတန်းလေးပဲရေဆိုအတန်းလေးပဲဘယ်လိုကိုအော်ကျွန်တော်တို့လေးမထွက်ရှိသေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လေးမထွက်မဲ့အနေထားမှာမြန်မာအကယ်ဒမီအသင်းကဟိန်းစင်အောင်လေးမကိုအကောင်းဆုံး6ထောက်နဲ့ပိတ်သွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အော်ဒိုင်လူကြီးတော့တောင်းမလားကျွန်တော်စောက်ကြည့်ရမယ်ဒီနေ့ထားတောင်းပါလားတောင်းရတောင်းဒိုင်လူကြီးကကျွန်တော် run out ဖြစ်လာမဖြစ်လာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်ပြီခင်ဗျာ Hello Reviewကျွန်တော်တို့တက်အိမ်မာယာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းကွက်ကိုပြန်လည်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာNot out third position မသေးပါဘူးခင်ဗျာBowler name Bowler name ကတော့ခဏဆောင်ကွာအဆွတ် After 2 overs 18 runs for the loss of 1 wicket ကျွန်တော်တို့ GC1 အသင်းက18မှတ်ရရှိပြီးတော့လူတယောက်အောက်ထားတယ်ခင်ဗျာဩ
အော် white တယ်ခင်ဗျာတမတ်ပေးလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာပြောမလားအေးဆေးပဲ အော်ကျွန်တော်တို့လေးမှတ်တန်ကိုဂျီစီဝိုင်းအကောင်းမွန်ဆုံးရိုက်သွားတယ်ခင်ဗျာ It's a MTTM boundary. My stamina boundary. အော်ဒီလုံးကတော့ကောင်းမွန်သွားနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးပြီးသွားတယ်ခင်ဗျာ ခမရကျွန်တော်မြန်မာလိုစကားပြောရတယ်အများကြီးမပြောတော့ဘူးနည်းနည်းနဲ့ပြောတယ်ရတယ်တော့တူတူပဲမြန်မာလိုပြောတယ်တူတူပဲအိန္ဒိယနဲ့စကားပြောရတယ်လေဆိုအခုမှဘောလုံးမှာဒီနာမक्या बोल रहा असवे बोलो तो आमा ओहो काफ़ी अच्छा शॉट लेग स्टंप पे बॉल था और घुमा के पैर ऊंचा करके बॉल को घुमा दिया है 6 रन के लिए अच्छा MTTM 6 अखुमा जगह पे में नीले प्योटे ဒီဘောလုံးကို6မှတ်ရိုက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဗျာ ओहो हो So no ball. धीमा MTTM बोलो, maximum. no ball. It's a free hit batsman. फ्री हिट बॉल था उसको आगे से पकड़ के अच्छा सा लेकिन Last 2 balls to go. It was a फ्री free हिट hit. बॉल था उस पे अच्छी विकेट कीपिंग करके बॉल पकड़ा विकेट नहीं है ओहो बहुत No ball. बैट्समैन के बहुत जे ऊपर से फेंका अंपायर का इशारा नो बॉल के लिए तो जितेंद्र पाठक काफ़ी होनहार बैट्समैन है और अपना होनहार यहाँ पे दिखाते हुए ये फ्री हिट है ओहो नो बॉल था It was no ये ball. विकेट था लेकिन नो बॉल था तो Last ball बैट्समैन to के go. लिए फ्री हिट Again no ball. Pulled away for 6. Oh sorry 4. MTTM. Sorry. My stamina boundary. Last ball. Very well shot. Just for single. Over. After 3 overs, 44 runs for the loss of 1 wicket. Bowler name. Bowler name. Okay.
Okay, play. Dot delivery. Good fielding at the end. मैं कहना चाहूँगा प्रदीप चौहान जी काफ़ी अच्छे हिटर है, अच्छे बैट्समैन है। समय को भांपते हुए, समय को देखते हुए सही समय पर सही गियर लगाते हैं प्रदीप चौहान जी। प्रदीप चौहान होनहार युवा बल्लेबाज। प्रदीप चौहान जी अच्छी गेंद को सही रक्षात्मक ball. तरीके से खेलने का कोशिश कर रहे थे, पर अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा। तो जीसी बॉयज में बैटिंग का काफ़ी गिरफ्त है, उसमें काफ़ी युवा बल्लेबाज है। हमारे यहाँ शुभदीप दादाजी भी युवा बल्लेबाज है, उनका भी आना भी बाकी है इस बल्लेबाजी क्रम में। बढ़िया, अच्छी Very well बॉल, ball. अच्छी It's a बॉल। dot ball. ये खेल युवाओं का खेल है दादाश्री, युवाओं का भरोसे ये खेल चल रहा है। आप युवा हो, हमको इससे बड़ी खुशी नहीं है। एक बार फिर बॉलर चले धीरे धीरे कदमों से। ओ, ये विकेट कीपर केस था कि विकेट कीपर ने हल्का सा ड्रॉप किया और यहाँ पे मिस्टर प्रदीप भैया को, प्रदीप चौहान जी को एक जीवन दान मिला। प्रदीप चौहान जी अमूमन ऑफ स्टंप की बॉल को बहुत अच्छा से क्लिक करते हैं, लेकिन बैट के बाएं किनारे पे बॉल लगा और विकेट कीपर ने बॉल छोड़ा। अच्छा शॉट जितेंद्र पाठक, अच्छी शॉट, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है जितेंद्र Last पाठक। 2 balls to go. अभी चौथा ओवर की 4 गेंद की समाप्ति के बाद में गोल्डन सिटी जीसी बॉयज का स्कोर है 47 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओहो, प्रदीप चौहान जी अच्छा लेग स्टंप पे आए और Very good अच्छा fielding क्लिक at the किया end. ये शॉट। लास्ट कदम पे फील्डर आके बाउंड्री जाने से रोका और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 रन बचाए। Last ball in this over. ओहो, अच्छा Very शॉट, well played. अच्छा शॉट और To the उतनी covers. अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश किया। देखते हैं और ये रन आउट का खतरा हो Oh, it's a सकता run है out. और अंपायर ने ये विकेट का इशारा किया Umpire है। given. It's a run यहाँ out. पे Very जीसी well, बॉयज का very good दूसरा fielding. विकेट खोता हुआ। नीले ने बॉलों ने काऊ काऊ मारे बॉलों सो स्टंप का ठे में। Fielder. Who is the fielder? Fielder name. मैथ्यू आऊं Keeper मैथ्यू name. मैंने मैथ्यू आऊं ने Keeper, मैं आई keeper. काऊ काऊ मारे बॉलों चीमा एंड बॉलों ठोमा। वेरी गुड विकेट कीपिंग मैथ्यू माऊ। Keeper name, please. Keeper name. मैथ्यू आए जी थ्रो, मैथ्यू आए जी कीपर ठे ओकेला। Bowler. Methu. चेंज हो गया ना और Bowler. मैथ्यू आऊं बॉलर ने मैथ्यू आऊं। After 4 overs, 49 runs for the loss of 2 wickets.
मैथुओं चले धीरे धीरे कदमों से बॉल फेंकते हुए प्रदीप चौहान ने इतनी ही अच्छी फील्ड बैट को मारा और दौड़ के 1 रन ले लिया। अच्छी बैटिंग प्रदीप चौहान। तो मैं कह रहा था आज जिस हिसाब से बैटिंग कह रहा है उसके हिसाब से इस टूर्नामेंट का पहला 100 हो सकता है। बहुत अच्छा शॉट देखते हैं ये। ओहो वेरी गुड फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। और यहाँ पे बैट्समैन ने नजरों में आंखों में दूसरा रन तेज गति से पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग द बिटवीन, मैं कहूँगा जीसी बॉयज के प्लेयर्स को वेरी गुड रनिंग द बिटवीन, शानदार रनिंग, अच्छा कॉल किया, वेरी गुड कॉलिंग, वेरी गुड रनिंग द बिटवीन प्रदीप। ओहो अच्छा शॉट देखते हैं दौड़ के 1 रन पूरा करते हुए। मैं म्यांमार टीम के कोच अशफाक भाई से कुछ बात करना चाहूँगा। अशफाक भाई बहुत ही मेहनत करके टीम के नौजवान साथियों को आगे बढ़ाए हैं। तो आप अशफाक भाई इस टीम के लिए क्या कहेंगे अशफाक भाई? I think it is first time they're playing T20, table tennis matches. Very hard to control balls, and it is difficult for them. It's a new game for them. Cricket itself is a new game for them, but table tennis they have never played actually. So that's the reason. The controlling of the ball and bat swing is totally different than the cricket ball. So that's why it is difficult for them, but it's a learning process for them. They're quite young. They're playing in this tournament. That is a good achievement for them. So I think it's a positive sign. बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक भाई। अशफाक भाई जिस हिसाब से म्यांमार के अंदर फुटबॉल खेल का अधिक प्रचलन है उस हिसाब से आपने नौजवान लड़कों को गेम में निकाला है और बहुत प्यारे तरीके से उनको निखारा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी इस कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज म्यांमार क्रिकेट फेडरेशन जिस गति से बढ़ रहा After है 5 overs, आपका उसमें 54 runs बहुत for the loss साधुवाद of 2 अशफाक भाई। wickets. GC boys after 5 overs, 54 runs for the loss of 2 wickets. अंपायर प्लीज जल्दी खत्म करिए, स्टार्ट करिए मैच को। वो निकालना यार, उससे बोला ही नहीं जा रहा है। एक मिनट, वो निकालो ना, उससे उधर से बोला ही नहीं जा रहा है। करने का था, क्यों क्या हो गया? क्यों लिखा है? हाँ हाँ। ओहो, नए गेंदबाज फिर आई, उनका सामना किया प्रदीप चौहान ने। प्रदीप चौहान बहुत ही होनहार बैट्समैन है। यहाँ पर जीसी बॉयज़ का स्कोर 55 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 5.1 ओवर के बाद। अच्छी गेंद फिफ्टी। सामने थे रवि सिंह के होट के हेड कोच रहे हैं मिस्टर सुशील सिंह जी। सुशील सिंह जी रवि सिंह के हेड कोच रहे हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने कोचिंग करके आए हैं। फिर चले फिफ्टी।
मैं रवि सिंह जी को बता देना चाहता हूं, आपके हेड कोच अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आपका मैच देख रहे हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आप जो भी आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ उस पर पूरा ध्यान लगा के वो मन से केंद्रित है, तो आप अच्छे से खेलिए। पीपीवाई चले, बॉल लेके ओप स्टंप पर बॉल, अच्छी गेंद। 5.4 ओवर की बाद 55 रन, 2 विकेट जीसी बॉयज का स्कोर है प्रेजेंट टाइम में। अच्छी बॉलिंग और बैटिंग का नज़ारा पेश हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। बहुत अच्छी गेंद पीपीवाई की, अच्छी गेंद कह सकता हूं मैं, क्योंकि पीपीवाई नौजवान यंग मात्र 15 वर्षीय लड़का है, 15 ईयर का लड़का अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पीपीवाई। ये एक बहुत अच्छी है, सामने स्टार बैट्समैन और उसके सामने एक 15 वर्षीय लड़का, अच्छी गेंदबाजी पीपीवाई की। अच्छी गेंद विकेट कीपिंग से मिस हुआ, और ये देखना होगा, ओहो, लास्ट मोमेंट पर फील्डर ने बॉल को रोका, और जब तक रवि सिंह और प्रदीप भैया ने जोड़ भाग के 1 रन लिया, लेकिन थर्ड एम्पायर देखना चाहिएगा कि ये 4 है या नहीं। और जीसी बॉयज के प्लेयर मृणाल भाई, वीरेन भाई काफ़ी तंदुरुस्त तरीके से वहाँ पे जवाब दिया, ये चौका नहीं है, तो एम्पायर देख लीजिएगा एक बार। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है सुभदीप भैया, क्योंकि जब चीयर लीडर होंगी तो ऐश्वर्या मैच नहीं खेलेगी, मैच जीसी बॉयज खेलेगी, इसलिए ऐश्वर्या इसको बात को सिरे से खारिज करती है। क्या है, चेक किया? तो ये 4 रन नहीं है, ये 1 रन ही है। सातवां ओवर की पहली बॉल लेके आए हैं, बॉलर का नाम नहीं डाला क्या प्रदीप? बॉलर का नेम नहीं डाला, बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम वन टाइम। जीन लाइन, बॉलर जीन लाइन। अच्छी गेंद, 7.2 ओवर के बाद जीसी बॉयज का स्कोर 57 रन, 6.2 के बाद में 57। क्या है कि कमेंटेटर भी नए हैं तो गलती हो सकती है, मैं जीसी बॉयज के खेमे से इस अपनी गलती के लिए क्षमा याची हूँ। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट मारा है, देखते हैं। अच्छी रनिंग द बिटवीन रवि सिंह और प्रदीप जी के बीच में। झीलाई नए गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है, तेज तरार गेंदबाज हैं। बढ़िया गेंद, ओहो, अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, कलात्मक शॉट बॉल रोका, और कलात्मक तरीके से ही बॉल रोका। अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, अच्छी फील्डिंग की यहाँ पे नौजवान तंदुरुस्त लड़के ने। नीले को मैं कहूँ मारे बॉलिंग में फील्डिंग में आलो मानो कहूँ मारे भैया तेजू टमारसिया। जीन लाइन बॉलिंग लेके चले अपने धीरे धीरे कदमों से। सामने रवि सिंह की अच्छी लेग स्टंप पे बॉल को टच किया, दौड़ के जब तक फील्डर पहुंचता तब तक 1 रन आसानी से पूरा कर लिया रवि सिंह और प्रदीप चौहान ने।
बढ़िया गेंद, उतना ही अच्छा शानदार शॉट। और देखते हैं आसानी से तेजी से जोड़ के एक बार फिर 1 रन पूरा कर लिया और मिस थ्रो हुआ यहाँ पे। क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? ओहो हो, एक वेरी गुड कॉल, बट लास्ट स्तर पर रवि सिंह ने मना किया प्रदीप चौहान जी को और रन से रोका। फाइनली यहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। नीले आलम को चनोप्यो में खूं पीतो आबी ओके 109 रन में 9 विकेट सीरे अकुमा म्यामालो टीमा अकुमा पोजीशन में कौन मारे कौन अबे या म्यामा टीमा अखु ना बॉलिंग में nga ओवर में nga जे रन में सीरे नो अखु दिन ना ओवर में बॉलिंग ने बैटिंग में फील्डिंग में म्याई कौ माने अखु कौ मारे फील्डिंग ओके कौन है कमिया। It's a mandatory power play, 8th over. मैंडेटरी पावर प्ले है 8वां ओवर और यहाँ पे 8वां ओवर का सामना करेंगे तेज तरार प्रदीप चौहान। ओहो, पहला बॉल, अच्छा शॉट और ये अच्छी फील्डिंग कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग कहूँगा अपनी टीम के लिए। 2 रन बचाए फील्डिंग के माध्यम से। रुको ना, चलेंगे ये एक पारी होनी बात चलेंगे। ओहो, बहुत अच्छी फील्डिंग विकेट के पीछे। से 7.2 ओवर के बाद 65 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। आओ मनोज जी, थोड़ा आपकी भी इंटरव्यू ले लें। बॉलिंग के लिए चले फ्यूफ्यूआई की ऑफ स्टंप पर बॉल, वे अच्छी विकेट कीपिंग कहूँगा मैं यहाँ पर। बॉल को विकेट कीपर के सीधे दस्तानों में जाने दिया बैट्समैन रवि सिंह जी ने। बॉल को सम्मानजनक पूर्वक बॉल को छोड़ा, अच्छी बॉलिंग। ओहो, फ्यूफ्यूआई की एक और बैक टू बैक यॉर्कर बॉल, अच्छी गेंद। 8वें ओवर की चौथी बॉल थी ये। अरे यार, एक पारी होने तो फिर चलते हैं, ये पारी होने तो 10 बॉल बचा है। ओहो, अच्छा शॉट, बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। और ओहो, देखना होगा यहाँ पर क्या होता है, अंपायर का डिसीजन, शायद ये नॉट आउट है। अच्छी फील्डिंग थी, नौजवान लड़का था, अच्छी फील्डिंग किए हैं। फ्यूफ्यूआई सटीक लाइन लेंथ पर बॉल डाल रहे हैं, हम बैट्समैन को कहीं मौका नहीं दे रहे हैं, गैप नहीं दे रहे हैं खेलने के लिए। 8वें ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले का आखिरी बॉल ओवर है। एक समय पे जीसी बॉयज मुझे लग रहा था 100 प्लस करेगी, पर यहाँ से कह नहीं सकते 100 प्लस करेगी। बढ़िया बॉल, ओहो हो, वेरी गुड फील्डिंग, पॉइंट पर लगे थे टीम के होनहार फील्डर, अच्छी से बॉल को रोका और टीम के लिए 2 रन बचाए। अच्छी फील्डिंग, वेरी गुड फील्डिंग। 8 ओवर की समाप्ति के बाद में, 8 ओवर के फिनिश के बाद में 65 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और हमारे अच्छे बल्लेबाज रवि सिंह जी, अभी होनहार बैट्समैन, क्या जीसी बॉयज अपने नए बैट्समैन को आजमाना चाहती है, इसलिए वेलकम फॉर रवि सिंह जी। मैं कहना चाहूँगा वीरेन भाई, यदि म्यांमार क्रिकेट में यदि सबसे बेस्ट यदि कोई नाम, यदि जाना पहचाना नाम, वीरेन मृणाल, वो Please जीसी wait. बॉयज के खेमे से हैं।
उन्होंने म्यांमार क्रिकेट में इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ दिया है। मैं तहे दिल से वीरेन और मृणाल भाई को हार्दिक आभार सलाम करना चाहता हूं कि इन दोनों ने म्यांमार क्रिकेट हेलो को भाई, एक मिनट जिंदा प्लीज रखने में- वेट, प्लीज वेट। विजय भाई थोड़ा 1 मिनट थोड़ा। ओवर की पहली बॉल लेके आए झीन लाई। अभी 11 गेंद का खेल बाकी है, 11 गेंद का गेम बाकी है। अभी देखते हैं क्या होता है। एक बार झीलें चले। ओहो, काफ़ी अच्छा शॉट प्रदीप चौहान का, काफ़ी तेज गति से रनिंग द बिटवीन करते हुए और दौड़ के 1 रन आसानी से पूरा किया प्रदीप चौहान ने। नए बैट्समैन विनोद शुक्ला जी काफ़ी होनहार बैट्समैन है। बॉलिंग के लिए फिर से बॉलिंग के लिए चले। हिल नहीं धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अच्छी गेंद पटकी हुई डिलीवरी थी। विनोद शुक्ला जी जो 1121 वनडे का अनुभव लेके आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने कलाइयों के सहारे से खेल के 1 रन चुरा लिया। झीलें चले। ओहो हो, काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग, और यहाँ पे प्रदीप चौहान जी को अपना विकेट गंवाना होगा। और झीलें ने देखा प्रदीप चौहान जी 2 कदम आगे जा रहे हैं, उन्होंने 4 कदम आगे बॉल का ठप्पा डाल दिया और विकेट कीपर ने चतुराई से बॉल को पकड़ा और विकेट को आसानी से छोड़ दिया। अच्छी विकेट कीपिंग कहूँगा मैं। नए बैट्समैन आशु, जो 2015 में मुझे अच्छी तरह से याद है, आशु का इंडिया में रणजी में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि बर्मा में जाना है तो रणजी का छोड़िए और म्यांमार क्रिकेट को टाइम देते हैं। धन्यवाद आशु भाई आपको म्यांमार क्रिकेट में टाइम देने के लिए। झीलें चले अपने ओवर की बॉल लेके। ओहो, अच्छी गेंद। आशु को लगा काफ़ी अच्छी गेंद है, आशु बहुत चतुर बल्लेबाज है और उन्होंने को बॉल से समझदारी से रक्षात्मक शॉट खेला। Last ball of the over. ओहो, आशु बहुत तेजी से मारना चाहते थे, लेकिन झीलें काफ़ी चतुर गेंदबाज है, उन्होंने चतुराई दिखाई। जैसे ही आशु घुमाना चाहता था बॉल को छोड़ा, और 9 ओवर की समाप्ति के बाद जीसी बॉयज का स्कोर 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। ये आखिरी की 6 गेंद का गेम बचा है, देखते हैं मैच किस ओर करवट होता है। मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि बॉम्बे बाइट्स का स्टॉल लगा हुआ है, गर्मा गर्म New छोले bowler name, भटूरे please. चालू है। New bowler name, please. प्लीज बॉलर नेम। मैम आलम को तेजू टमारे ना। न्यू बॉलर नाम है माशी नीनी नाउ नाम है ना। आलम मा मिंगला बा खमिया।
नानी की पहली गेंद काफ़ी अच्छी गेंद, ओप स्टंप पर बॉल थी। विनोद शुक्ला जी ने मारना चाहते थे लेकिन बॉल का ठप्पा बहुत अच्छा था और बॉल कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद, पहली गेंद। मैं कहूँगा म्यांमार के नौजवान लड़कों को, उन्होंने आखिरी के जो 5 ओवर में कमबैक किया है, व्हाट ए कमबैक प्लेयर्स, वेरी गुड बॉलिंग। विनोद शुक्ला जी म्यांमार के जाने माने हिस्ट्री शीटर बैट्समैन रहे हैं एक समय में। For what? Saki bhai? For थर्ड एम्पायर चेक प्लीज। umpire decision is not a wide. चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट, 2 मिनट का टाइम दीजिए। एम्पायर और प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखिए। हमारे ब्रह्मराजू अक्की जी पूरे ध्यान से, शांत से, मन से, प्यार से आपके लिए चेक कर रहे हैं। विनोद शुक्ला जी पार्थिव पटेल के कद के काठी के बल्लेबाज हैं। पार्थिव पटेल का लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल था और शुक्ला जी का राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है। एक समय था विनोद शुक्ला जी जब अपने ज़माने में यंग हुआ करते थे और अपनी बल्लेबाजी से चौके छक्के मारे करते थे। वो शुक्ला जी के आज एक बार फिर देखने को मिलेंगे, उसी उम्मीद के साथ मैं देखता हूँ। अभी 4 गेंदों का या गेम बचा है, यदि ये वाइड नहीं हुई तो उसमें क्या अपना यंग पूरा दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, देखने को मिलेगा। मैं मृणाल और वीरेन की बात कर रहा था। उन्होंने म्यांमार क्रिकेट में बहुत से नौजवान लड़कों को उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिला है। मृणाल, वीरेन बहुत अच्छे बैट्समैन, बॉलिंग स्पिरिटिंग बहुत अच्छी है इन दोनों में। इन दोनों का गेम अगले कुछ देर में देखने को मिलेगा। One bounce. It's not wide. It's fair delivery. One bounce. अंपायर का इशारा नो वाइड। ओहो, शुक्ला जी ने, मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, अच्छे यंग जवान हैं और अच्छे से फील्डिंग की, बॉल को रोका, 1 रन दौड़ के पूरा किया। अभी आखिरी की 3 गेंदें बची हुई है, 68 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट जीसी बॉयज टीम। आशु, वेरी गुड बैट्समैन आशु। लास्ट ओवर 3 बॉल बचे। ओहो आंसू, अरे भगवान, बच गया। बहुत अच्छा शानदार शॉट, लेग साइड में ठोका, 6 रन के लिए। MTTM 6। आशु को पता है आखिरी ओवर चल रहा है, अब हाथ को खोलना पड़ेगा और स्कोर बोर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। एम्पायर का इशारा नो बॉल और आंसू को भी मिलेगा एक फ्री हिट। यहाँ पे जीसी बॉयज का स्कोर 75 रन। अच्छा शॉट आंसू का, फ्री हिट बॉल थी, उतनी अच्छी फील्डिंग चैंपियन के द्वारा फील्डिंग थी। ये Last ball of the innings. ये आखिरी बॉल है इस ओवर की और जीसी बॉयज का स्कोर अभी 76 रन। देखते हैं नौजवान हट्टे कट्टे 18 वर्षीय विनोद शुक्ला जी इस आखिरी बॉल को कहाँ तक पहुँचाते हैं।
ओहो नीनी चले आखिरी बॉल की आखिरी ओवर लेके। ओहो अच्छी गेंद थी, पटकी हुई डिलीवरी थी, अच्छी बॉल डाली थी नीनी ने। और इस तरह जीसी बॉयज का स्कोर ख़त्म होता हुआ 77 रन बनाए हैं 10 ओवर में। 78 रन म्यांमार बॉयज को बनाने होंगे ये मुकाबला जीतने के लिए। अच्छी बैटिंग लाइनअप थी। Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters, and is poised for continued success and growth in the sector. Shekhana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector, and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. In addition to trading activities, Shekhana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items, known for fast and reliable services. Shekhana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar. Najin kai khe vedana de atwat akaung song tho Kodi ye Far Infrared Blaster.ဟာနေရာကိုချွေးနေပါလားဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲရင်းနှီးကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံး royalty Figure Pharmacy ဆေးဆိုင်ဟာဆိုရင်ဆေးဝါးများနဲ့ဆေးဝါးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးကာစတမာများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စမ်းချောင်းလမ်းမတော်ပဇွန်တောင်ထောက်ကျန့်နဲ့လှဲကူစတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဖူးဘန်နာကနေလည်းမှာယူရရှိနိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Fast Delivery ဝန်ဆောင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Audio Jungle. Shakib bhai.
ये लीग स्टेज का आखिरी मैच है और मैच होने जा रहा है जीसी बॉयज़ वर्सेस एमएटी के बीच में। जीसी बॉयज़ आसानी से आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। ये मात्र एक औपचारिकता। बॉलिंग करेंगे वीरेन एमएटी के बैट्समैन को। अच्छी गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, जोर से प्रहार किंतु कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल में। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत वीरेन द्वारा। वीरेन मेरे ख्याल से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक अच्छी शुरुआत दी है जीसी बॉयज़ को। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे निनचेंसो। थोड़ी सी फुलर लेंथ, एक बार वही नतीजा। काफ़ी फुलर लेंथ गेंद डाल रही, काफ़ी मुश्किल होता है इस सिचुएशन में फुलर लेंथ गेंद को खेलना, वो भी इतनी स्पीड के साथ। एक नेचुरल एंगल मिलता है वीरेन भाई को, जिसके कारण गेंद थोड़ी सी बाहर निकलते हुई। ओ जैसे कि मैंने कहा था, बहुत बढ़िया, दोनों गेंदें बाहर निकाली है। तीसरी वाली अंदर की तरफ आई, सीधा लेग स्टंप के ऊपर टकराई। नतीजा विकेट खो दिया है यहाँ पर बिना किसी खाता खोले। ये एमएटी का आखिरी मैच है जीसी बॉयज़ के लिए। औपचारिकता है कि अच्छा अपना फॉर्म मेंटेन रखे, मोमेंटम मेंटेन रखे। जिस गेंदबाज या बल्लेबाज को ट्राई नहीं किया उनको ट्राई करे। और उसी के साथ ये एमएटी के लिए आप देख सकते हैं रिप्ले में कितनी ज़बरदस्त गेंद थी। मिडिल स्टंप पर पिच हुई, थोड़ी सी अंदर आई और जाकर टकराई लेग स्टंप पर। इन स्विंगिंग बॉल थी ये। कोई भी अच्छा बल्लेबाज डिफ़िकल्टी महसूस करता है इस गेंद को खेलने में। तो फुल मार्क्स टू वीरेन फॉर दिस वंडरफुल स्टार्ट फॉर जीसी बॉयज़। तो मैं कह रहा था कि ये एमएटी के लिए प्राइड का मैच है, उन्होंने अब तक कोई मैच जीता नहीं है। वो चाहेंगे कि एटलीस्ट 2 पॉइंट के साथ इस लीग स्टेज को ख़त्म किया जाए। और जीसी बॉयज़ चाहेगी कि उनका मोमेंटम, उनका विनिंग स्ट्रीक चलता रहे। मात्र एक मैच हारा है जीसी बॉयज़ ने अब तक। नए बल्लेबाज जिनलाइंग, बाएं हाथ के बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बाएं हाथ के होने के कारण जब कोई राइट हैंडर बॉलिंग करता है उन्हें एक एडवांटेज मिलता है एंगल का। इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज थोड़ी सी क्रीज के आगे खड़े। फिर एक बार वही नतीजा, नो बॉल। ये अंदरूनी किनारा और बोल्ड हुआ, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। शाकिब अंपायर ने ये नो बॉल करार दिया है। अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाकर टकराई स्टंप्स पर। दूसरी सफलता हो सकती थी वीरेन के लिए, किंतु वहां पर नो बॉल का इशारा दिया अंपायर शाकिब ने, जिस कारण ये आउट नहीं करार दिया जाएगा। ये फ्री हिट। काफी निराश होंगे, हताश होंगे। अच्छी गेंदबाजी थी, विकेट मिल चुका था, किंतु लक्ष्मण रेखा लांग दी, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक बोनस रन जाएगा एमएटी के लिए। इसी के साथ एमएटी का खाता खुलता हुआ। और अगली गेंद होगी फ्री हिट। इट्स अ फ्री हिट बैट्समैन। आगे बढ़कर मारने की कोशिश, वहां पर ठीक से संपर्क नहीं, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा, वहां पर शॉट लगे, फील्डर ने शॉट फील्ड कर लिया है। माफ कीजिएगा, थोड़े से शॉट फाइन लेग पे सुमित थे, उन्होंने फील्ड कर लिया है इस गेंद को, जिस कारण कोई रन नहीं। तो अगेन फिर एक बार वो थोड़ी सी फुलर लेंथ गेंद, थोड़ी सी हवा में गेंद ने हरकत की। अच्छा डिफेंस हुआ जिनलाइन द्वारा। लास्ट बॉल इन दिस ओवर। थोड़ी शॉर्ट ऑफ अ लेंथ गेंद वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहली ओवर के बाद स्कोर है 1 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इट्स एक्सीलेंट स्टार्ट बाय जीसी बॉयज। Viren, the captain leading from the front, has given the fantastic start to his team when it comes to the batting as well as bowling.
His natural angle to the right-hander makes difficult to play. He has ability to swing the ball in both the angles. It's a tape ball, so it swings a bit. The next bowler will be Amit Tyagi, who will be bowling right arm around the wicket. The batsman is Mathu. We would like to thank our sponsors, VCare Pharmacy, Royal British International School. You're watching us live because of them. Our broadcasting partner is Royal British International School. Here comes Amit Tyagi. Bit of a room, short of a length, couldn't connect well. Mrinal misjudged it. And here's a chance of run out. Completed comfortably. There was a short of a length, there was a timing, there was a room, he tried to slash it to the offside. There was not a great connect. Misjudged by Mrinal. And easily 2 run taken by the batsmen of Myanmar Academy team. Matthew will face the second delivery from Amit Tyagi, who is coming around the wicket. The fuller length ball, this side inside, this time inside edge, ball raced away to the fine leg. Shuklaji fielded it. It's a good fielding by Shuklaji. Just a single. He tried to hit hard, but couldn't connect it well. The inside edge went to the boundary. At the fine leg, Shuklaji stopped it before ball races over to the boundary. Tyagi is ready to bowl the left-hander, Zinline. There is a change in the fielding. Full length ball, again the inside edge. The Shuklaji is ready on the fine leg. Easy fielding for him. Just a single again. It really becomes difficult for the fielders and the batsmen, and the bowler, sorry, because of left and right hand combination. You have to change the field. The bowler has to change the line. Amit will bowl to Mathu. It's a good length ball. Tried to hitting hard. The fielder at the short leg fielded it with no run. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अमित त्यागी. अब तक सिर्फ 3 रन दे चुके हैं. 4 गेंदें हो चुकी इस ओवर की. अगली गेंद लेकर तैयार अमित त्यागी. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, दिशाहीन और नतीजा वाइड. अंपायर शाकिब ने निर्णय दिया है वाइड. इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद डाली, किंतु लाइन थोड़ी सी बाहर की तरफ थी, लेग साइड की दिशा में. फिर एक बार उछाल दिया उसे हवा में. देखना होगा कैच पकड़ पाएंगे नहीं. थोड़ी सी घूमी गेंद मिस की और ये नतीजा 4 रन. ये रहा माय स्टैमिना चौका. लेग साइड की दिशा में खेलना था. टॉप एज लगा, बॉल गई कीपर के पीछे. शुक्ला जी ने थोड़ी सी मिस करी कैच. बॉल गिरने के बाद थोड़ी सी घूम गई. ओवर रन कर गए शुक्ला जी. उस कारण नुकसान हुआ 4 रनों का जीसी बॉयज के लिए. काफी मुश्किल था ये पकड़ना, क्योंकि बॉल गिरने के बाद लंबा स्पिन लिया बॉल ने. एक टर्न हुआ जिस कारण इट वाज डिफिकल्ट फॉर शुक्ला जी टू फील्ड. बैड लक टू द बॉलर. प्लेयर तैयार नहीं. अंपायर ने रोका. अमित त्यागी को वापस भेजा रनअप के साथ. इस ओवर की आखिरी गेंद होगी. द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर. वह बहुत ही अच्छा प्रहार, उसे हवा में उछाल दिया है, लेकिन आशु ने कैच के लिए दौड़े थे, किंतु थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी गेंद. एक बाउंस पे पकड़ लिए. मात्र 1 रन मिलेगा म्यांमार एकेडमी टीम को. इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति. बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. Matt required 68 runs, 67 runs in 48 balls. This is the 3rd over. Will be bowled by Mr. Pathak. He seems to be a very good bowler. Nice long run up, good rhythm. काफी हाइट भी है इनकी, इस कारण he gets
a good pace, a good length in the pitch. Here comes Pathak, will bowl to Mathu. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद उसे बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश करी, अच्छा संपर्क नहीं, शॉर्ट लेग पर भेरू जी ने उसे फील्ड कर दिया है और एक डॉट गेंद। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करने के लिए जाने जाती जीसी बॉयज की टीम। आखिरी मैच में थोड़े से अपने किंतु मेरे ख्याल से वापसी करना चाहेंगे। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। जितेंद्र पाठक तैयार, अगली गेंद लेकर उनका सामना करेंगे मैथ्यू। अच्छी गेंद, फिर एक बार उसे डिफेंड किया, फिर एक बार भेरू जी के हाथ में गेंद जाती हुई, कोई रन नहीं। अच्छा पेस है यहाँ पर जितेंद्र पाठक जी के पास। थोड़ी सी फिर एक बार शॉर्ट गेंद, वहां पर लेग साइड की दिशा में जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। गेंद गिरकर लेग साइड के बाहर थी, काफी दूर, थोड़ी सी शॉर्ट भी थी, कीपर मिसजस्ट कर दिए उसे, बाहर होने के कारण उनके रीच से बाहर। नतीजा एक एक्स्ट्रा बोनस रन वाइड के साथ मिलेगा मैच को। खुश होंगे। बढ़ता ऑस्कर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद करेंगे जिनलाइन को। जिनलाइन आक्रामक बल्लेबाज है, मन बनाकर आए हैं, उनके सांसिप नजर आ रहा है कि अटैकिंग गेम होगा उनका। यह आखिरी मैच है। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद, उसे अंदरूनी किनारा और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। यही थोड़ा सा अनलकी रहे जितेंद्र पाठक। अच्छी गेंद थी, शॉट कुछ खास नहीं था, अच्छा संपर्क नहीं था, अंदरूनी किनारा लगा। काफी तेज है इनके, स्पीड है इनकी बॉल में, जिस कारण अगर एज लगता है और कीपर के रीच से बाहर जाती है गेंद तो लगभग तय है कि ये बॉल बाउंड्री जाएगी। Although there is a fielder in the deep third man, but it's difficult because the ball races away very fast. Happy boundary, my stamina boundary for Matt. Once again, good length ball, tried to hit on the leg side, but unfortunately the ball went on the offside because there was no proper connect. It was mistimed it. Now Mathu will face Jitendra Pathak for the first time in this over. I'm sorry, he has already faced one ball. अच्छी गुड लेंथ बॉल, उसे जोरदार प्रहार करने की कोशिश, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद जाती हुई। जब तक ये फील्ड किया जाता है 1 रन पूरा कर चुके हैं। जिनलाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, अच्छा प्रहार करते इन्होंने पिछले 2-4 मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए कंपेयर टू अदर बैट्समैन। उनसे काफ़ी उम्मीद होगी कि जीत के लक्ष्य के करीब से करीब जाकर एक प्राइड के साथ इस टूर्नामेंट पे एंड करे। यदि अगर मैच ये जीत भी जाता तो उनका कोई संभावना नहीं कि अगले राउंड के लिए जाए। फुल लेंथ गेंद, कोई ज़्यादा रूम नहीं, ज़्यादा स्पेस नहीं था, इस कारण मात्र 1 रन मिलेगा। इसी के साथ जितेंद्र पाठक अपनी पहली ओवर ख़त्म करने के बाद गेंद थमा दी है अगले गेंदबाज को, शुभादीप मित्रा को। पाठक जी ने अपने पहली ओवर में 9 रन कंसीड किए हैं। स्कोर इज 20 runs at the end of 3 overs with the loss of 1 wicket. Next ball will be bowled by Subhadeep Mitra, who will bowl to Zinlai, the left-hander from Myanmar Academy team. He is known for his aggressive batting. He is ready to face Subhadeep Mitra. ये अच्छा शॉट, हवा में गेंद, आशु ने जम के, और ये वो लाजवाब कैच, कोरिएंडर लीफ सेफ हैंड्स, जबरदस्त कैच आशु द्वारा। एक चंदीमल का कैच और ये दूसरा
बहुत ही जबरदस्त कैच आशु द्वारा, आगे की तरफ गेंद थी, दौड़ लगाई, सही टाइम पे फॉरवर्ड लीन करे, एक अच्छा कैच है ये। बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया लेकिन टाइम नहीं कर पाए। देख सकते हैं आशु ने फ्रंट लीन होकर अच्छा कैच पकड़ा, रिदम में उन्होंने अपनी जंप कंप्लीट करी, जिस कारण कोई हड़बड़ी नहीं, गेंद मानो फेविकॉल से उनके हाथों में चिपक गई और एक सफलता मिलती जीसी बॉयज को। दूसरा विकेट गिर चुका है म्यांमार एकेडमी टीम का। जिनलाइन जो अच्छा टाइम नहीं कर पाए, कोशिश अच्छी थी उनकी, गेंद उनके जोन में थी किंतु टाइम नहीं कर पाए, उनको रिप्लेस करेंगे। और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज पीएफओ जो असली पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, अच्छी कीपिंग वहां पर, पैरों पे टकराई गेंद, वीरेन ने रोक ली। एक रन जरूर बचा अपनी टीम के लिए, इससे बॉलर का मनोबल बढ़ता है अगर फील्डिंग से इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो। पहले बॉल पे कैच, दूसरे बॉल पे अच्छा सेव। फुलर गेंद स्लॉग में थी, ये अच्छी गेंदबाजी, ऐसी गेंदें खेलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। अगर आप आगे की ओर क्रीज में बॉल डालोगे, वहां पर पिच करोगे तो काफी मुश्किल यहां पर किसी भी बल्लेबाज के लिए। थोड़े से क्रॉस लाइन खेलते हुए फिर एक बार मौका बनाया और ये लगा एमटीटीएम मैक्सिमम। जबरदस्त शॉट था ये, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, उसे भाप लिया, बैकफुट पर गए, एक जबरदस्त पंच लगा दिया स्वेयर लिक के सर के ऊपर से। कोई मौका नहीं, किसी फील्डर बने दर्शक। और ये रहा एमटीटीएम मैक्सिमम, अच्छा शॉट यहां पर। आगे की ओर गेंद और अच्छा संपर्क हुआ बल्ले में और यहां पर सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। स्ट्रेट बाउंड्री माना काफी मुश्किल यहां पर, बाउंड्री काफी लंबी है स्ट्रेट में, उसी के अलावा हवा थोड़ी सी तेज होने के कारण काफी मुश्किल होता है। स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी नजदीक है, अच्छा प्रयास था, अच्छा शॉट था किंतु टाइम नहीं कर पाए अच्छे से। फिर एक बार उसे बड़ा प्रहार करने की कोशिश पूरी तरह से चुके, स्टंप से थोड़ी सी काफी नजदीक थी ये गेंद, छू के थोड़ी सी आउट हो सकते थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन, 27 runs for the loss of 2 wickets at the end of 4 overs. The next batsman will be Pefio on strike. Pefio has done very good job in the last match. He was a top scorer for his team. He has some class. He punches ball very hard on the leg side, is very strong on leg side, is taking a stance to make himself a room to punch or flick the ball on the leg side. Fuller ball and it's wide, it's far away, it pitched on the white line mark. Amit Tyagi starts with the wide. Good length ball and straight to the hands of the keeper. PFO tried to hit again the big shot, but he missed it again. Here comes Amit Tyagi. A good length ball. Played to the long on for the single. Ashu is there. आशु जी है जिन्हें नबी, हमारे जो बिहार से नबी, उन्हें प्यार से आंसू कहते हैं। थोड़ी सी गेम में रुकावट, शायद कोई बैट चेंज करना चाहते थे। त्यागी जी तैयार, तीसरी गेंद लेकर। अच्छी गेंद थोड़ी सी आगे डाली, आगे डाली, अराउंड द विकेट बॉलिंग करे त्यागी जी। उनका एक नेचुरल एंगल है जो बॉल गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती है गेंद, उस कारण बॉल से काफी दूर रह गए बैट्समैन, बल्लेबाज कोई संपर्क नहीं। इस ओवर की चौथी गेंद सामना करेंगे मैथ्यू। फुलर लेंथ गेंद, अच्छी गेंदबाजी करे यहाँ पर आशीष त्यागी जी, कोई ज्यादा स्पेस नहीं दे रहे, अच्छी लेंथ नहीं दे रहे, जिसके कारण बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं लंबा शॉट मारने में। और एक डॉट बॉल इस ओवर की।
एक अच्छी गुड लेंथ बॉल, एक बड़ा प्रहार, देखना होगा क्या होता है नतीजा। और ये रहा MTTM मैक्सिमम। बहुत अच्छा शॉट यहां पर मैथ्यू द्वारा। काउ कॉर्नर में ये लगा छक्का, थोड़े से ऑफ स्टंप पे वॉक करा, इंतजार किया गेंद का, गेंद उनके जोन में थी, अच्छा संपर्क आखिरी ओवर इस गेंद की। फिर एक बार अच्छा शॉट रहा यहां पर हवा में गेंद। जितेंद्र पाठक काफी दूर थे गेंद से, नतीजा 1 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर है 'Scorer, please update the score. बताना चाहूंगा कि इंटरनेट की स्पीड कम होने के कारण जो हम स्कोर करते हैं और वीडियो में थोड़ा सा लेट आता है स्कोर। MAT requires 42 runs in 30 balls. काफी अच्छी फाइट दे रहे हैं एमएटी यहाँ पर। जीसी बॉयज जो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी मानी जा सकती है। मात्र 8.1 के औसत से रन चाहिए उन्हें। अच्छा शॉट यहां पर, गैप ढूंढने में कामयाब, लेकिन आशु तेज वहां पर, बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहां पर आशु द्वारा। आशु जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा और अंपायर ने यहां पर रेफर किया थर्ड अंपायर के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए, सूझबूझ अंपायर के द्वारा, क्योंकि ये काफी निर्णायक मोड है इस मैच का। उन्होंने रेफर किया थर्ड अंपायर को चेक करने के लिए कि शायद कहीं गलती से रोप पे पैर या कहीं टच तो नहीं हुआ। क्लियर है। Safe. It's very good fielding by Ashu. बहुत अच्छी फील्डिंग माने, सर्टनली अपनी टीम के लिए 2 रन बचाया आशु ने, काफी महत्वपूर्ण। ये अच्छा शॉट मार रहा था, लेकिन वहां पर फिर एक बार मुझे लगा गेंद सामने की ओर चली गई, लेकिन अच्छा संपर्क न होने के कारण पॉइंट की दिशा में कैच बन रही थी। मृणाल जी थोड़े से ओवर रन कर गए, जिस कारण बॉल तक पहुंचे नहीं, मिस जस्ट किया इस कैच को। नतीजा रहा एक जीवन दान बल्लेबाज के लिए, मैथ्यू के लिए, जो अब तक 15 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं। अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे मैथ्यू। अब जीत के लिए चाहिए 38 रन इन 28 बॉल्स। A good shot again. Sumit tried really hard. It was a tough chance. He tried really hard, reached to the ball, but unfortunately थोड़े से दूर रह गए, शायद हाथों को स्ट्रेच करना पड़ा, जिस कारण उनका बैलेंस नहीं बन पाया। नतीजा कैच ड्रॉप। अच्छा प्रयास वहां पर मैथ्यू जिन्होंने ठान ली है कि he'll go against the bowler। वहां पर अंपायर से थोड़े बात करते हुए पिच फोल्ड हो जाती है हवा के कारण। Now MAT require 37 runs in 27 balls. The match is at very exciting note. Try to hit really hard, but there is no proper connect with the ball. Dot ball. Pradeep is bowling to pave your way. He's in really good form. The previous match, the first match, he played really well. On the leg side,
and it is called wide by the umpire. It's a wide ball by the umpire Shakib. पिच होने के बाद बॉल बाहर गई, अंपायर का इशारा वाइड, एक बोनस रन मैट के खाते में। अगली गेंद लेकर तैयार प्रदीप। फिर एक बार अंदरूनी किनारा, अच्छी कीपिंग। यहाँ पर काफी मुश्किल होता है इनसाइड एज के ऊपर फील्ड करना। वीरेन की आंखें आखिर तक गेंद पर, और एक डॉट बॉल इस ओवर की। काफी रोमांचक स्थिति में ये मैच मैट और जीसी बॉयज के बीच। अगली गेंद लेकर तैयार प्रदीप चौहान। गुड लेंथ गेंद, उसे थोड़ा बाहर निकल हवा में उड़ा दिया है। वहां पर आसानी से कैच पकड़ लिया जितेंद्र पाठक ने। इस बार कोई चूक नहीं। पिछले दो अच्छे मौके बने थे किंतु मुश्किल थे, दोनों के कैच ड्रॉप हुई। एक बार मृणाल जी थोड़े से मिसजज कर गए, सेकेंड टाइम सुमित बॉल तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन इस बार विकेट सफलता मिलती हुई जीसी बॉयज को। थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ खुश महसूस कर रहे होंगे जीसी बॉयज, क्योंकि लास्ट 3 ओवरों में मैट ने रनों की गति को बढ़ा दिया था, जिस कारण मैच काफी रोमांचक स्थिति में आया था। अब देखना होगा यहाँ से क्या होता है। अपनी तीसरी विकेट खो दी है मैट ने 42 रन के टीम स्कोर पर। अब तक 5 गेंदों में 6 रन दे चुके हैं प्रदीप चौहान। अच्छी नपीतुली गेंदबाजी की है उन्होंने, एक वाइड छोड़कर काफी सटीक गेंदबाजी अपनी लाइन और लेन से कहीं नहीं चुके। इस ओवर की एक आखिरी गेंद, नए बल्लेबाज होंगे जो सामना करेंगे अगली गेंद। ओवर, इट्स ओवर, 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 ओवर। एज पर स्कोर इट्स ओवर। इसी के साथ छठे ओवर की समाप्ति। MAT need 36 runs out of 24 balls, 4 over remaining. 36 runs required in 24 balls. 9 की रन की गति से उन्हें चेस करना होगा मैच जीतने के लिए। लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल जीसी बॉयज के स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, किंतु क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मैट वापसी कर सकती है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच। अच्छी गेंद वहां पर वीरेन द्वारा, काफी तेज करते हैं, दोनों दिशाओं में गेंद को एंगल करना, स्विंग करना जानते हैं, जिस कारण काफी परेशानी होती है बल्लेबाज को। मैट के नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी खुशकिस्मत होंगे कि अच्छे बॉलर का सामना करे इस टूर्नामेंट में, जिनके उनका मनोबल बढ़ेगा। अच्छी गेंद स्लॉग में थी, उसे अच्छा कनेक्ट किया, गैप ढूंढने में नाकामयाब। वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने फील्ड कर लिया, मात्र 1 रन मिलेगी। 6.2 ओवर के बाद स्कोर है 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 35 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। 35 runs required in 22 balls. Difficult but not impossible. Anything can happen. GC has a very good batting lineup, but the way Matt is playing is also sensible cricket. It's really impressive for all of us. Here comes Viren, the captain. Full length ball. This is a crucial over for GC boys and Matt as well. Till now, Viren has been quite economic. In his 1.3 overs, he had just conceded 2 runs and got 1 wicket for GC boys. He's really nice bowler. He varies his pace, length, line. One more full length and it's out. It's out. Wonderful ball by Viren. Much required wicket. In fact, much required dot balls from the point of GC boys. Matt was doing really great till the last over. Unfortunately, with the loss of their informed batsman, the run rate has dropped down. The 2 wickets have been lost in last 2 overs. The next batsman
Maung San Nini Nai. He will face one of the successful bowlers in this tournament, the captain of GC Boys, Viren Bijilwan. He's in great form. Now, MAT needs 35 runs in 20 balls. With each dot ball, the required run rate is going up, up and up. Matt really needs to do something to get back on the track. Here comes Viren with his 5th delivery of this 2nd over of his spell. Again the full length ball, this time they could able to take the single run. The short mid wicket, before he fielded, the 1 run was completed. The last ball of the 2nd over of this inning by Viren. That's a good variation in the pace. It was outside edge, keeper fielded the ball by the time the single run was completed. With this, Viren completes his 2 overs for the day. At the end of 7 overs, the score is 45 runs for the loss of 4 wickets. Now, MAT needs 33 runs in 18 balls. If they want to win this match, they need 33 runs in 18 balls. GC Boys, they don't have much pressure because they have already qualified for the next round. But they would like to keep their winning record intact. But at the same time, it's a must win for MAT. They lost 4 consecutive matches. They would like to end this tournament with 2 points. They are playing for the Pride, a young dynamic team from Myanmar Cricket Federation. He will face one of the best bowlers till now is Jitendra Pathak. He has a pace, he has a line, he has a length and a good cricketing sense. He conceded 9 runs in his first over. Will be bowling to the Myathu. Full toss. He must be really unhappy with himself, Myathu. There was a chance. Full toss is like a bonus for the batsman here. Couldn't hit, couldn't take the maximum benefit. In fact, it was a dot ball, so he must be upset with himself. Jitendra Pathak was lucky to get away from that. He'll bowl the second ball of this over. Here, a short ball. It was way above the head of the batsman. Umpire signals is a wide ball and given the first bounce warning to the bowler. Matt needs the run by any means. Extras with the bat, they'll be happy as long as they get it. Again a full toss ball. Try to hit over the bowler's head. And they completed 2 runs till now. A leg umpire signals no ball. It's a no ball. Batsmen get the free hit. They must be really happy now. Something to cheer for the MAT. Now they need 28 runs in 17 balls. Jitendra Pathak will bowl the second ball. Oh, try to hit hard, try to make a room for himself. The ball kept low. Sensible bowling by Pathak, good comeback. After first 2 full toss balls, he's back with his rhythm. It was a good length ball, kept low. Batsman tried hitting hard to maximize the free hit bonus. Try to hit really hard the ball. There was a tough chance. Jitendra Pathak tried really good. Unfortunately, couldn't convert into the wicket. MAT batsmen are trying to hitting too hard. They know they need, with the higher run rate, they're trying to accelerate. Not been able to connect the ball properly. As a result of it, a lot of chances have been created, though the tough one.
Again, a good long ball. Couldn't time it well. Straight into the hands of the bowler. MIT needs 25 runs, 27 runs in 14 balls. I would really appreciate the fight given by MIT against the mighty GC boys. Again, trying to hit too hard, the inside edge straight into the hands of the keeper. No run, again a dot ball. Each dot ball will take the victory away from the MIT, whereas it will confirm the victory for GC boys, which is in really good form. This is the last ball of the over. Bit of a shot. Tried to pull it on the leg side. Ball went to the long on, and Tyagi comfortably fielded. Just a 1 run to end this over. Now the only 2 overs are remaining from this inning. MIT needs 26 runs in 12 balls. Still achievable. They need They need 26 runs in 2 overs. 26 in 12 balls. Now captain has given the ball to Bheru Singh. Bheru Singh will bowl to Mathu. He is the top scorer till now for the MIT. Good length ball. Punch it down to the long off. Ashu is in great form in fielding. Easily fielded. So Mathu has been impressive in this inning. He has scored 25 runs in just 23 balls. Oh, again trying to hit it hard on the leg side. Ball kept low. Bheru is known to in variation for his pace, which makes it difficult for the batsman to connect, time the ball. Again, they try to hit hard ball in the air. This time lands between Sumit and Mrinal. Spins away. They tried to take the second run, but Mrinal was quick to come back from that spin of the ball. Here comes the next ball of this over. Bheru has been impressive till now. Half the over is completed. He just given 2 runs at the crucial time. A short of a length ball, he tried to pull it, but ball went to the short fine leg just for a single. Singles will not help MIT to achieve their target. They need some big shots. GC boys keeping it tight with their discipline line and length. They have done really good in fielding today. Again into the slogs, he hit it down to the leg, and it's a MTTM boundary. Wonderful shot, welcome boundary to MIT after a long time. Much required boundary to keep them in the race. It's a my stamina boundary. It's a my stamina boundary. Much required boundary for them. They need it's a good comeback by Bheru. No room, good length ball. Batsman was preparing for the bigger shot, but इसी के साथ ओवर की समाप्ति. Please update the scorer. In 6 ball. It takes some... सभी दर्शकों को बता दूंगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है इंटरनेट की स्पीड कम होने के कारण वीडियो और स्कोरबोर्ड सिंक होने में. It takes time to sync the scoreboard with the screen. You can check the live real-time score in Crick Heroes application. Ashu, who has done really good in fielding, saved 2 runs in the boundary. A good catch. And now want to try his luck in the bowling as well. The left-handed bowler bowls medium pace.
A good ball here. Batsman tried to hit on the leg side. Good fielding by Amit Tyagi. Strong arm. Just a single. 18 runs required in 5 balls. Ashu will bowl his second delivery of this over. To Matthew, man in form. It's a good shot again to the long on. They try to take the second run and the chance of run out, and it is out. Umpire given it out. It's a good fielding by Tyagi again. He has a strong arm. He collected the ball. There was a chance of second run, but falling short of his crease. He has to go back to the pavilion. Which brings back the man in form, Matthew, on strike. He is playing. Batsman name, please. On 31 runs in 27 balls. He's really playing really good for his team. Highest scorer till now, Matthew has scored 31 runs in 28 balls. Sorry, Lelo Sakonama. 17 runs required in 4 balls. They need 4 boundaries to equal the score. A lower full toss. It turns out to be a good weapon during this over when the bowler can bowl the lower full toss precisely, correctly into the right slot. It's very difficult for bowler to hit for the longer shot, a bigger shot. Just a single unconsidered. It's a full toss here, and umpire says it's a no ball. It's a no ball from the umpire. यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा प्लेयर्स के बीच में रिव्यू लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते, आखिरी में उन्होंने पुल आउट कर लिया अपना रिव्यू. इट्स अ फ्री हिट. Try to hit on the leg side, walked across the stumps, but missed it completely. The slow delivery from Ashu, deceived completely. आगे ब्रेक मारने की कोशिश वहां पर, लेकिन आशु ने देख लिया था कि क्रीज से बाहर है, काफी पेस में वेरी किया, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में. वहां पर कोई चूक नहीं वीरेन द्वारा, और एक और सफलता जीसी बॉयज के नाम. इसी के साथ लगभग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच जीसी बॉयज ने जीत चुका है, अनलेस आशु कोई बड़ी गलती ना करे नो बॉल्स की, या कोई चमत्कार ना हो एमएटी की ओर से. जीसी बॉयज लुकिंग कंफर्टेबल टू सील yet another victory and end this league stages matches on winning note. Whereas I'm really impressed by the performance of Matt. Take a ball from the free. They have done really well. At the end of 6 over, the match was quite balanced. It could have gone anywhere. Matt was looking quite strong there that time. But as I said, GC Boys is an experienced team. They have a captain. All the bowling side is doing really good job. Viren came back on the attack, slowed down the run rate, got the 2 crucial wickets in his over. Tried to hit hard, the ball went to the long on. They tried to take this 2 runs, the ball was thrown to the keeper, and Viren making no mistake, yet another wicket for MAT. Amit Tyagi has done really good. He has a really good strong arms. लॉन्ग ऑन से कीपर के पास फेंकना कोई आसान काम नहीं है. इसी के साथ ये जीसी बॉयज ने मैच जीत लिया है. बहुत बहुत मुबारक हो जीसी बॉयज. हार्ड लक एमएटी. You played really well till 7th over. You had a great chance to win this match. But again, unfortunately, you couldn't make it to the target. Full marks to the GC boys, their captain, for showing the experience. They know that MAT was doing good. Viren got back the experienced bowler in the attack.
Real Kings at number 3. Mavericks today made fantastic comeback there at number 4. Master Blaster at number 5. And MAT finishes at the bottom of the table. As per the tournament schedule, GC Boys, Ace Warriors, Mavericks and Real Kings qualifies for the next round. Table topper Ace Warrior will face GC Boys tomorrow at 7 p.m. The second match will be played between Mavericks and Gracewind Real Kings. It has been a really good tournament till now. All the team has shown great efforts. I would like to hand over this to Pranay for the post-match presentation. May I request MAT and GC Boys to come to the backdrop for the